Hello everyone. In today's engineering hydrology class, we will be discussing about the well completion and the maintenance part, and then we will move on to the topic of groundwater contamination. So, let us now move on to this topic. These are the reference material that has been used for this preparation of the slides. We have talked about in the last class about the percussion drilling, जिसमें हमने बात करी थी drill bit की, about the pipe casing जिसके अंदर ये काम हो रहा होता है. You have also talked about कि एक बेलर होता है जिसकी मदद से you can easily get the chopped bits of the soil or the rock which is being present here, okay, because the drilling bit will be causing the removal of the particles or loosening of the particles there. So, this baler is inserted and then it is taken out and the particles are getting filled into this and then it is subjected to disposal there. Next we talk about the rotary drilling. Rotary drilling में क्या होता है? There is a rotating bit. Okay, this rotating bit what it does? This rotating bit what it does? It rotates it and यहाँ पे जो cutting bit होता है, cutting edge होता है, this will help you in cutting through the soil there, and this drilling bit helps you wherein the slurry is also pushed in here, and with the help of this cutting you can easily get out the water here. जहाँ पे ये water के साथ साथ क्या आता है, slurry बन के आता है. Okay, the chips which are there or the sand which is there, ये sand यहाँ पे आएगी. This sand is along with the water is pumped here, which is coming into the settling pit. यहाँ पे ये जो particles होंगे, these get settled here, and then the water is again pumped into this rotary. Okay, this rotary rotating bit here. तो ये होता है रोटरी ड्रिलिंग का काम. यदि हम बात करें एक परकशन ड्रिलिंग और रोटरी ड्रिलिंग, हमने तीसरा जो एक डिस्कशन किया था कि हम तीन टॉपिक देखेंगे, एक है परकशन और दूसरा था एक रोटरी जिसके बारे में हमने अभी देखा, एंड थर्ड इज़ द परकशन रोटरी ड्रिलिंग. तो परकशन रोटरी ड्रिलिंग में क्या होता है? इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दिस परकशन दैट इज़ द हिटिंग हार्ड, ओके, hitting the rock bottom or impermeable layer, or I would say the pervious formation, basically not the impermeable layer, the pervious formation. So, that is being done by the action of the hammer. And the second point is the rotary drilling. Rotary drilling में क्या हो रहा है? With the help of the rotation. तो digging तो हो रही है by the force of this percussion value, this percussion, but it is also rotating. So, this will have a double impact on the well construction. When we talk about the well completion here, so process of ensuring the balanced sedimentation or erosion of the particles forming the geological strata, ये कहाँ पे होंगे? ये aquifer में होंगे. Okay, these we are talking about the aquifer particles. So, in which the well is drilled. The processes which are involved in the well completion, these are the placement of the well casing. जो आप well जब construct शुरू होता है, okay, this is the ground level, सबसे पहले आप well casing डालते हैं, उसके बाद फिर what you will be doing, you will be trying to get out the particles. Okay, these particles should be taken out. Second is the placement of the well screen, जो अभी हम देखेंगे कैसे आप well screen को place करते हैं. Third is the gravel packing. Gravel packing is very much necessary so that the sediments are not coming out along with the water every time. Let us now see one by one. So, well casing is a lining to maintain an open hole from the ground surface to the aquifer. तो एक well casing, एक pipe जो है, एक hollow pipe हम place करते हैं in the ground. So, this is the well casing that is being placed here. Now, after this well casing has been placed, we will work into this well casing only. हम यहाँ पे साइड में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस well casing के अंदर ही सारा वर्क कर रहे होंगे. यहाँ पे हम we can drill the hole through it and we will be determining कि कहाँ पे भी हमें aquifer मिलेगा, वहाँ से we can extract the water. So, this is the well casing. अब दो प्रकार की casing होती है, एक surface casing, एक pump chamber casing. Well casing यदि हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके की पाइप्स यहाँ आपको देखने को मिलती हैं. Okay, these are the pipes or the hollow pipes, I would say. These are the pipes that are to be used. अब हमने केसिंग तो कर दी, नाउ विल बी कंस्ट्रक्टिंग द वेल. अब केसिंग करने के बाद हमें जो है, जो वाटर हमें यूज़ करने के लिए चाहिए वो हमें वेल स्क्रीन के थ्रू मिलता है. केसिंग हमने इनिशियली अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने फिजिबिलिटी के लिए किया, देन बाद में हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं केसिंग को, और हमें सिर्फ और सिर्फ इस वेल स्क्रीन को वहाँ पे ग्राउंड में रहने देते हैं. दिस वेल स्क्रीन इज अ परफोरेटेड कवर प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड वाटर यील्डिंग सर्फेस ऑफ अ वेल.
जो मेथड्स हैं दीज आर पुल बैक मेथड जिसके द्वारा इन वेल स्क्रीन को इंस्टॉल किया जाता है, सेकेंड इज द ओपन होल मेथड, थर्ड इज द बेल डाउन मेथड एंड फोर्थ इज द वॉश डाउन मेथड। सो इन मेथड्स के द्वारा वेल स्क्रीन को हम प्लेस करते हैं ग्राउंड में। एक मेथड हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज द पुल बैक मेथड। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के समय जो भी ग्राउंड लेवल है देन दिस इज द वाटर टेबल, हम यहाँ पे वेल केसिंग को प्लेस कर देंगे ओके और यहाँ पे ड्राइविंग शो है सो दैट दिस वेल केसिंग गेट्स इनसाइड द सॉइल ओके, दैट इज़ वन पार्ट। अब क्या होता है, हमें इसमें से तो कुछ पानी मिलने से रहा, क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट परफोरेटेड, वहाँ पे कोई परफोरेशन नहीं है कि जो एक्यूफर है वहाँ से पानी यहाँ पे टैप हो जाएगा। सो व्हाट यू डू, यू प्लेस अ वेल स्क्रीन। तो ये स्क्रीन जो है यहाँ पे ड्रॉप की जाती है विद द हेल्प ऑफ केबल्स। सो दिस वेल स्क्रीन इज नाउ प्लेस्ड हियर। आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ द वेल स्क्रीन व्हाट यू डू, यू पुल बैक यू पुल बैक द वेल केसिंग। तो आप यहाँ पे वेल केसिंग को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। नाउ व्हाट रिमेन्स इन द ग्राउंड इज ओनली द वेल स्क्रीन जिसके थ्रू पानी जो है यहाँ पे पास करेगा इनटू द वेल एंड दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यू इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्चार्ज। सो दिस इज द वेल स्क्रीन which is being shown here. So you can see the diagram here. This is the pull back method for the placing of well screens. Then there is one term that is the gravel pack. Now there is this well screen here okay, यहाँ पे well screen install हो गई, but आसपास के जो areas होंगे that is consisting of the aquifer sediments. अब ये sediments जो है किस तरह के हो सकते हैं, these can be anything ranging from fine particles to bigger particles or the larger particles or the coarser particles I would say okay. So these are aquifer sediments okay, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, और यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ग्रेवल्स प्लेस कर दें ओके, ग्रेवल्स यानी कि बड़े कोर्सर पार्टिकल्स यहाँ पे हम प्लेस कर दें तो दैट विल हेल्प इन प्रॉपर मूविंग ऑफ द वाटर थ्रू दिस रीजन। अब ये जिस थिकनेस में हम इसको प्रोवाइड करते हैं दैट इज रेंजिंग फ्रॉम बेसिकली हम 7.5 सेंटीमीटर के प्रोवाइड करते हैं, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर थिकनेस। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये थिकनेस ऑफ द ग्रेवल पैक ओके। सो दैट इज द ग्रेवल पैकिंग करी जाती है। नाउ आफ्टर दिस स्क्रीन हैज बीन प्लेस्ड व्हाट यू डू, यू विल बी प्लेसिंग और यू विल बी ड्रॉपिंग दिस ग्रेवल इन दिस रीजन ऑल अराउंड द वेल। तो ये जो वेल है इसके चारों तरफ से यू विल बी पैकिंग इट विद ग्रेवल। कितनी थिकनेस में, 7.5 सेंटीमीटर जनरली एंड नॉट ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। तो ये थिकनेस पे यू विल बी प्रोवाइडिंग ऑल अराउंड द वेल द ग्रेवल पैक। अब एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज द पैक एक्यूफर रेशियो। अब ये पैक एक्यूफर रेशियो क्या है, एक्यूफर तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस विल बी द एक्यूफर जहाँ पे ये वाटर टेबल मौजूद है ओके, दिस रीजन इज व्हाट एक्यूफर। अब एक्यूफर में कुछ पार्टिकल्स होंगे ओके एंड पैक इज द ग्रेवल, जो हमने यहाँ पे ग्रेवल पैक की बात करी है। सो दिस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कंट्रोलिंग टर्म है, दिस इज द कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द डिस्चार्ज, प्रॉपर डिस्चार्ज और इकोनॉमिक डिस्चार्ज ऑफ वाटर। अभी पैक एक्यूफर रेशियो डिफाइन कैसे किया जाता है, दिस पैक एक्यूफर हैज बीन डिफाइंड एज D50 of the gravel upon diameter 50 of this D50 of this aquifer. So this is the pack aquifer ratio. Now if you talk about the pack aquifer terms okay, the values which are to be used. So for uniformly graded aquifers, for uniform aquifers actually जिनका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज लेस देन इक्वल टू 2, इनके लिए जो पैक एक्यूफर की रिकमेंडेड वैल्यूज हैं दैट इज बिटवीन 9 to 12.5 एंड फॉर द ग्रेडेड एक्यूफर्स जिसके लिए CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, द पैक एक्यूफर रेशियो इज गिवन टू बी 12 से लेके 15.5 तक। So these are the values which are being recommended for the pack aquifer ratio. तो एक चीज़ तो ये आपको पता रहती है हमेशा ही कि आपको कितना डिस्चार्ज वर्कआउट करना है ओके।
सो यू विल बी नोइंग अबाउट द एक्यूफर ऑल्सो कि वहाँ पे किस तरीके का एक्यूफर है, उसमें किस तरीके के पार्टिकल्स हैं, बिकॉज वेल व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग द वेल उस समय यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एक्यूफर, ओके, कि उसके क्या पार्टिकल्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑलराइट. सो व्हेन यू नो दैट की पैक एक्यूफर रेशियो इतना होना चाहिए, सो बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला दैट इज D50 ऑफ द ग्रेवल अपॉन D50 ऑफ द एक्यूफर. तो आपको इसमें जो ये डिनोमिनेटर है D50 ऑफ एक्यूफर, यू ऑलरेडी नो दिस बिकॉज ऑफ द सॉइल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस. पैक एक्यूफर रेशियो आप कितना रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो दीज टू वैल्यूज आर नोन. तो कितने साइज का ग्रेवल आप इसमें डालेंगे टू पैक द वेल, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय दिस फार्मूला हियर. सो यू कैन इजीली डिटरमिन द साइज ऑफ द ग्रेवल दैट यू वांट टू पुट इन द वेल सराउंडिंग. सो दिस इज द थ्योरी फॉर दिस ग्रेवल पैक. यदि आप यहाँ डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे ये स्लॉटेड वेल है जहाँ पे ये स्लॉट्स बने हुए हैं, ओके, ये द स्लॉट्स हेयर. और जो ये यहाँ पे इस जोन से हमने जो ग्रेवल यहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ पे फिलिंग कर रखी है, दिस इज कॉल्ड एज द दिस ग्रेवल श्राउडिंग. ग्रेवल श्राउडिंग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वेल श्राउडिंग. जो हमने अभी ग्रेवल पैक की बात करी उसको जो हमने टर्म दिया है उसको हम बोलते हैं वेल श्राउडिंग. Okay, so this is the water bearing strata. Now the water will be moving from this surroundings or the aquifer basically to this gravel pack, and then इस gravel pack से होते हुए फिर ये well में पहुँचेगा, and then well from this well you can easily discharge the water. So this is something you can see here. Well shrouding is what? It is the process of inserting the coarse material, in this case it is the gravel, between what? Between the well pipe or the strainer pipe जिसको हम कहते हैं and the aquifer soil to prevent the particles entry into the well. तो यदि आप डायग्राम के रिस्पेक्ट में देखें तो एक तो वेल पाइप हो गई, ओके, दिस इज द वेल पाइप हेयर, दिस पाइप इज द वेल पाइप, और एक दिस इज द आउटसाइड पोर्शन, और आई वुड से दिस इज द एक्यूफर. तो इसके बीच में जो आप ये फिलिंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द वेल या फिर ग्रेवल श्राउडिंग. It is essential in the sandy and unconsolidated formation of the aquifer because the sand particle will try to enter into the well every time the water is being pumped out. तो इसीलिए हमें ये gravel shrouding करनी पड़ती है. It is also essential in slotted type tube well or the gravel packed well. Well shrouding की यदि हम बात करें तो shrouding increases the effective well diameter, okay, because gravel thickness क्या कर रहा है, वो यहाँ पे बढ़ जा रहा है, okay, well के diameter को एक तरीके से बढ़ा दे रहा है वो. It protects the well pipe from caving of the surrounding formation. तो जो well pipe है ये अंदर की तरफ दब ना जाए, okay, so it does not cave in, ऐसा ना हो, इसकी यहाँ पे help करता है ये well shrouding. A gravel packed well has a greater specific capacity, यानी yield per unit drawdown, हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में, yield per unit drawdown is increased, okay, due to this gravel packing. अब हम बात करते हैं वेल डेवलपमेंट की. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइन मटेरियल फ्रॉम द एक्यूफर फॉर्मेशन सराउंडिंग द स्ट्रेनर पाइप. तो जो आसपास का एरिया है ऑफ द वेल, फ्रॉम दिस द डिस्चार्ज इज बीइंग टेकन आउट, तो जो यहाँ से लेट्स से दिस इज द एक्यूफर जोन. तो जो ये एक्यूफर जोन है, तो जो आसपास का एरिया है ना, ये दिस जोन और दिस जोन, यहाँ से जो फाइन सेडिमेंट्स हैं इनको यदि हम निकालते हैं तो इसका जो प्रोसेस है दैट इज़ दिस well development. It is aimed at increasing the specific capacity of the well, preventing the sand flowing in, and then third is the obtaining the maximum economic well life. Okay, so that is why you are developing the well. अब यदि हम यहाँ से फाइन पार्टिकल्स का रिमूवल कर देते हैं तो क्या होगा, जो यहाँ पे स्ट्रेन्स हैं या फिर मैं कहूँ स्क्रीन्स हैं या स्लॉट्स हैं, तो दीज विल नॉट गेट क्लॉग्ड. अगर ये क्लॉग नहीं होंगे तो जो लाइफ है वेल की दैट विल बी इंक्रीज्ड, बिकॉज जो डिस्चार्ज आपने इंटेंड किया था निकालने के लिए, दैट डिस्चार्ज इज कमिंग आउट ऑफ द वेल. सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच यू आर बेसिकली एमिंग एट वेल यू आर डेवलपिंग द वेल. एक्चुअल यील्ड ऑफ द वेल कैन बी नोन ओनली आफ्टर द वेल डेवलपमेंट, बिकॉज इनिशियली कितना डेवलप हुआ है, कितना पानी निकल रहा है वेल से, वो आप नहीं डिटरमिन कर पाएंगे प्रॉपरली. नेक्स्ट द मेथड्स बाय विच द वेल इज बीइंग डेवलप्ड. फर्स्ट इज द मेथड बाय पंपिंग. It is developed by surging, third is development by compressed air, and fourth is development by backwashing. Let us now discuss some things here.
जब वेल डेवलपमेंट हम पंपिंग के द्वारा करते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप ओवर पंपिंग कर दीजिए, ओके, इसमें क्या होता है कि आप एक ही बार में बहुत ही हैवी ड्रॉ डाउन कॉज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज आप निकालना चाहते हैं पानी, ओके, सो डिस्चार्ज इज़ हैविली इंक्रीज, उसके कारण क्या होगा, जो ड्रॉ डाउन है वो भी अच्छा खासा इंक्रीज कर जाता है। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड, बिकॉज यहाँ पे केविंग इनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। द वेल बेसिकली केव्स इनसाइड द वेल देयर। अदर इज द इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपने एक बार स्टार्ट किया वेल को, पंप को, देन उसके बाद फिर यू स्टॉप द पंप, ओके, देन अगेन यू स्टार्टेड इट, अगेन यू स्टॉप्ड इट। तो इस तरीके से इंटरमिटेंट स्टॉपिंग एंड ओपनिंग ऑफ द पंप टू पंप आउट द वाटर, it is the safe method and this is done to develop the well. Development by surging. अब surging में क्या होता है, you are basically putting a plunger inside of the well and then pulling it outside of the well. तो इसके कारण जो suction produce होता है, इससे what will happen, the fine particles will come inside here and then it will move out along with the moving water. So by this method the surging it can be done. कंप्रेस्ड एयर में क्या होता है, इफ़ यू हैव अ वेल जहाँ पे यू आर हैविंग अ लेट्स से एंट्री, जहाँ पे आप इस बैरियर को आप क्लोज कर सकते हैं, ये टॉप पे, ओके, नाउ व्हाट यू हैपन, यू फोर्स इन द वाटर, यू फोर्स इन द वाटर हेयर, बट ये वाटर के पीछे अ कंप्रेस्ड एयर जेट इज ऑल्सो थ्रोन इन। व्हेन दिस कंप्रेस्ड एयर जेट इज प्रेशराइज्ड इन, व्हाट विल हैपन, ऑल द वाटर विल बी गेटिंग इनसाइड द एक्यूफर हेयर इन द सराउंडिंग रीजन। और जैसे ही आप इस ब्लॉक को यहाँ पे ओपन करते हैं एंड द प्रेशर इज रिलीज्ड, एंड जैसे ही प्रेशर इज रिलीज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, इन द सेकेंड फेज जैसे ही प्रेशर रिलीज हो रहा है, इन दैट केस द वाटर विल कम अगेन इनसाइड द वेल। इन दिस सेकेंड केस वाटर यहाँ पे वेल में आएगा और साथ में क्या करेगा, साथ में फाइन सेडिमेंट्स जो हैं उसको भी लेके चला आएगा। So in that case the fine sediments in this region and in this region will come along with the water. So by this compressed air method you can see that the well can be developed here. Also there is one method that is backwashing. इसमें भी water का इस्तेमाल करते हैं, water is put into the well and then again it is taken out by the method of this for this well development. तो ये चार methods हैं यहाँ पे जिसके through हम well का development कर सकते हैं. Now let us talk about the well maintenance. Why we are talking about the well maintenance? Because you want to get the proper discharge of the well. Proper records of the following help in maintenance of the well. You have to keep well discharge noting at various interval of time. Okay, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको जो है ये देखते रहना चाहिए कि वेल डिस्चार्ज जितना आपने इनिशियली इंटेंड किया था जब आपने वेल का डेवलपमेंट किया था, क्या उतना 6 महीने बाद भी वेल डिस्चार्ज मिल रहा है या साल भर बाद भी उतना डिस्चार्ज मिल रहा है। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज फ्यू फैक्टर्स जिसको आपको नोट डाउन करते रहना चाहिए। सेकेंड इज द ड्रॉ डाउन दैट इज बीइंग कॉज्ड देयर। थर्ड इज द पावर कंजम्पशन। फोर्थ इज द ऑपरेटिंग आवर, आप कितने घंटे के लिए उस वेल को चला रहे हैं। फिफ्थ इज द वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, तो जो भी वाटर क्वालिटी है क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, राइट। देन वेल एफिशिएंसी शुड बी टेस्टेड पीरियोडिकली एंड कंपेयर्ड विद द एफिशिएंसी व्हेन वेल वाज न्यू। तो वेल एफिशिएंसी इनिशियल कंडीशन में और आज की प्रेजेंट डेट में कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। यदि हम टेक्निक्स की बात करें, हाउ विल यू मेंटेन द वेल, फर्स्ट थिंग इज रीडेवलपमेंट यूजिंग वेल डेवलपमेंट टेक्निक्स। जितनी भी हमने वेल डेवलपमेंट टेक्निक्स अभी तक पढ़ी थी उसी के हिसाब से आप फिर इसको वेल को दोबारा बनाइए। क्यों बनाना पड़ रहा है इसको, क्योंकि जो आपने डिस्चार्ज इनिशियली आपने इंटेंड किया था वो कुछ समय बाद डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस क्यू चेंजेस टू लेट्स से क्यू डैश, जिसकी वैल्यू इट इज़ वेरी मच लोअर। So you have to redevelop the well using the well development techniques. Second is the chemical redevelopment using acid or dispersing agent. All right, these are the two things here. Third is the mechanical cleaning of the well screen by wire brushing or high pressure jetting. तो ये मेथड भी है जिनकी मदद से आप ये वेल स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। ऑलराइट, फोर्थ इज द स्क्रीन रिप्लेसमेंट। तो जो स्क्रीन आपने प्लेस करी थी वेल में, ये वेल केसिंग थी एंड देन यू प्लेस द स्क्रीन हेयर, ओके, दिस स्क्रीन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। अगर ज़्यादा ही क्लॉगिंग हो गई है तो इस स्क्रीन को आपको रिप्लेस करना मैंडेटरी हो जाएगा, ओके, बिकॉज इफेक्टिव डिस्चार्ज फिर यहाँ पे मिलना मुश्किल है।
देन रिड्यूसिंग द पंपिंग रेट आप यदि कम करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये वेल मेंटेन तो हो जाएगा, बट इन दैट केस यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द वाटर दैट यू आर ऑब्टेनिंग. So these are the well maintenance techniques here. Now let us talk about the pumping equipment for the water wells. Shallow open well discharge is usually less, hence hand pump, that is a reciprocating pump जो आप अपने घरों में देखते होंगे, that is used. For deep well and tube well, higher capacity pumps are used. So factors for the selection of pump for the tube wells, that is the diameter and depth of the well. ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पंप यूज़ कर रहे हैं. ओके, देन द अदर इज डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, कितनी डिस्टेंस पे ग्राउंड लेवल से आपको वाटर टेबल मिलती है देखने को. थर्ड इज द ड्रॉ डाउन. फोर्थ इज द सीजनल वेरिएबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल. फिफ्थ इज द ड्यूरेशन ऑफ द पंपिंग. सिक्स इज द कैपेसिटी. सेवन्थ इज द इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. एट्थ इज द पावर रिक्वायर्ड. तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पंप यूज़ करना है. आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करना है, आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करना है. इट डिपेंड्स अपॉन द these 8 factors here. यहाँ पे यदि आप डायग्राम देखें तो डीप वेल टर्बाइन पंप है ये. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप. इट इज़ अवेलेबल फॉर डायमीटर्स 10 to 35 सेंटीमीटर. सो दैट इज़ वन टाइप. डीप वेल जेट पंप होते हैं. ओके, दिस इज फॉर स्मॉल डिस्चार्जेस जो कि आप अपने घर में भी देखते हैं. ऑलराइट, दिस इज़ फॉर डायमीटर्स 10 to 20 सेंटीमीटर. लिफ्ट इज़ बिटवीन 6 से 50 मीटर. तो बेसिकली ये जो 3 स्टोरीज होम्स होते हैं आपके, वहाँ पे आपको आराम से पानी ये पंप करके देते हैं. So these are the pumps that you are using in your homes. Now let us talk about a few extra things here, that is about the advantages of the well irrigation over the canal irrigation. First thing is this, कि wells are under the direct control of the owner. Okay, of the owner. Second is wells can be located such that they can command any required land. अब कैनाल जिस क्षेत्र में जाएगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पानी मिलेगा, but this well can be located anywhere to command any sort of land. Supply from well can be maintained fairly constant, जो कि basically कैनाल में देखने को नहीं मिलती है. Duty of the water in the well irrigation is generally higher. तो कितना area per cubic of the water it is there in the well irrigation, that is higher than the canal irrigation. Fifth point is this, कि well irrigation generally does not fail in drought season. क्यों? क्योंकि water table चलिए डाउन जाएगा, बट अगर 2-3 साल का ड्रॉट रहा तो, बट 1 साल का ड्रॉट रहा तो वो जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करना है दैट कैन बी यूटिलाइज देयर. सिक्स इज दैट मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर, बिकॉज इरीगेशन फैसिलिटी आपके पास मौजूद है. एक सीजन में तो आप रेन वाटर से काम चला लेंगे, तो दूसरे सीजन में यू कैन ईजिली यूटिलाइज द वेल इरीगेशन. द सेवेंथ पॉइंट इज दैट वेल वाटर इज मोर सुटेबल टू द क्रॉप्स, बिकॉज ये जो है पानी इट इज़ वार्मर इन द विंटर सीजन and it is colder in the summer season. So this is having more temperature compatibility with the crops. So these are the advantages of well irrigation over the canal irrigation. There are also some disadvantages, that water has to be lifted. Okay, so working expense जो कि आपका पंप के रूप में होता है, या फिर मैं कहूँ कि इनडायरेक्टली पावर के रूप में होता है. Okay, the electrical consumption or the power that has to be paid up for this. Second point is pump defects and disruptions in the electric supply lead to disruption in the irrigation. तो यदि लाइट चली जाती है तो उस केस में ये तो वर्क करने से रहा. So this is the problem with the well irrigation. Well water is free from silt, thus no manuring value to the fields. बट वहीं यदि कैनाल की यदि आप बात करें तो कैनाल में क्या होगा, वहाँ पे सिल्ट पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, इवन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी मौजूद रहते हैं. सो दोज हेल्प इन गेटिंग द मैन्यूरिंग फॉर द फील्ड्स. फोर्थ इज स्ट्रेनर रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड एट पीरियोडिक इंटरवल्स. यदि आप स्ट्रेनर या फिर स्क्रीन्स को आप रिप्लेस नहीं करते हैं समय के साथ साथ, सो दैट विल गेट क्लॉग्ड एंड दैट विल बी ऑफ नो यूज फॉर यू फॉर द प्रैक्टिकल पर्पजेज. फिफ्थ इज दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई ऑफ द वेल. सो बेसिकली यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सो यू कैन गो फॉर द वेल इरीगेशन, बट इट विल ऑल्सो हैव सम ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस. Selection of suitable site for tube well. When you talk about these few points, tube well should be selected at a site where large underground water reservoir exists. जिसका पता आप कैसे कर सकते हैं? You can go for the exploration, groundwater exploration. So with this technique, you can also find out the aquifers which are present there. Place usually green and dark in summer, indicating a higher water table. ऐसा आपको ground level पे देखने को मिलेगा.
Second is certain worms and insects such as gnats hover around that spot, okay, by actual boring. तो ये 3 मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ग्राउंड में वाटर इज अवेलेबल इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी. Second is if geological excavations indicate ridges and depressions of impermeable strata, then tube well should be located where there is the valley. अगर हायर पॉइंट्स हैं और लोअर पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वैली होगा वहाँ पे आपको बेसिकली पानी देखने को मिलेगा. Third point is this कि area should have well distributed and uniform demand for irrigation throughout the year, and also it should be centrally located so that the transit losses are minimum. So अगर मैं बात करूँ कि if this is the field तो it should be centrally located here कि वो हर जगह पे irrigation कर सके. So this tube well should be centrally located. तो ये जो है कुछ साइट के बारे में हो गया, and this topic of groundwater quality we will be covering in the next class. Thank you for today.